Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss one sample paper which is strictly based upon your CBSE curriculum. जो CBSE में आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी टाइप के माइंड में रखकर ही मैंने ये क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, सेट किए हैं. And it will definitely help you to boost your confidence level how to solve the questions. If you are having any notebook or pen with you, I suggest you to solve these questions with me so that आपका जहाँ पर भी जो डाउट है वो साइड बाय साइड उसी क्वेश्चन में वो वहीं क्लियर हो जाए. And if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. And if you have not liked this video, please like this video because इस वीडियो के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है. So let's start now with the first question. Write a Python statement to open a text file data.txt so that new contents can be written into it. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क में आते हैं. फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है. अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करके दिखाना है. एंड द नेम ऑफ माय टेक्स्ट फाइल इज data.txt and you have to open that file so that new contents can be written on it. Up to open the file means, or to open the file we are having basic read mode, write, append, r plus इस तरीके से. ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, f this is my file handle, open function लिखेंगे, then data.txt. Here you have to write the name of your file and we have to write the content in the file, so it will be open in w mode, or even you can use the w plus mode also. अगर फाइल में से डेटा रीड करना होगा तो for that you have to write the r mode and for append we have to use the w a mode. Next question is, name the Python library module which needs to be imported for the following functions. 2 functions are given to you. आपको एग्जाम में 2 functions given होंगे and you have to identify the name of the module. It can be from your math module, from statistics module, from pickle module, from random module, any 2 functions. So load function is from the pickle module and uniform function is in the random module. And while writing the answer, make sure that all these alphabets will be small. अगर आपने यहाँ पर R कैपिटल लिख दिया तो random module में R कैपिटल नहीं होता है, ये ऑलरेडी हाफ मार्क्स के होंगे तो आपका वो हाफ मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपने इसमें केसेस का ध्यान रखना है. पाइथन इज माई केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपने ये सारे के सारे स्मॉल में ही लिखने हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the content stored in the file worldcup.txt. ये आपको एक फाइल गिवन है. इंडिया हेड एंड राइट द आउटपुट, ये आपको टेक्स्ट गिवन है उस worldcup.txt वाली फाइल में. दिस इज योर टेक्स्ट written in the file. Now what you have to do, you have opened the file in read mode. ठीक है, उसके बाद print function, that means वैल्यू प्रिंट होगी. और क्या प्रिंट कराना है, f.read2. ठीक है, जो रीड फंक्शन है, व्हाट इट विल डू, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड हाउ मेनी बाइट्स, 2. तो ये 2 बाइट्स को यहाँ से रीड करेगा, i और n. तो अब ये डिस्प्ले क्या करा देगा बेटा, i एंड देन n. अब प्रिंट फंक्शन है तो मेरा कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में. उसके बाद क्या है बेटा, रीड लाइन फंक्शन. अब व्हाट माय रीड लाइन फंक्शन विल डू, it will read up only single line from the file. अब मेरा कर्सर कहाँ पर है बेटा, D के बिगनिंग पर, तो इस बिगनिंग से लेकर मेरी लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, तो यहाँ तक ही आपको आउटपुट में शो करेगा. So this will be the output of this question. I and 2 characters from this function and read line function, it will print the single line. ठीक है, और किसकी फॉर्म में आंसर देता है हमें, स्ट्रिंग की फॉर्म.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल. इसका आप विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर रहेगा. डिग्री मींस कि जो मेरे पास एक टेबल है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट टेबल इज कॉल्ड एज द डिग्री, एंड कार्डिनलिटी मींस द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल. यहाँ पर टेबल की जगह रिलेशन वर्ड भी गिवन हो सकता है, तो रिलेशन मींस आल्सो द टेबल. प्लस आपको किस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक टेबल गिवन होगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मींस टेल द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन. तो टू फाइंड आउट द डिग्री यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड फॉर कार्डिनलिटी यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रोज. और जब आप टोटल नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करोगे, उस टाइम पर जो आपकी हेडर रो है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना होता. जो आपकी हेडिंग वाली होगी, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड व्हिच कैन बी एनीथिंग, आपने उसको इंक्लूड नहीं करना व्हाइल कैलकुलेटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिल वांट्स टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट्स. अब 2 कॉन्टिनेंट्स में डेटा ट्रांसफर करना एट वेरी हाई स्पीड. राइट द नेम ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम दैट कैन बी यूज्ड एंड राइट द टाइप ऑफ नेटवर्क आल्सो. अब इस क्वेश्चन में आपको two things you have to tell: transmission medium and the type of the network also. So 0.5 plus 0.5. ट्रांसमिशन मीडियम 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, वायरलेस नेटवर्क यूज होगा, और वेरी हाई स्पीड का कौन सा बेटा हमारे पास? सैटेलाइट नेटवर्क. एंड फॉर दैट विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी यूज्ड? WAN, that means wide area network. Data structure stack is based on which property? Last in first out, LIFO property. अगर Q होता है तो that follows the FIFO property, first in first out. Now next question. 2 schools in the same city wanted to transfer e-learning information. E-learning information transfer करना है, यहीं पर आपको सारा आंसर मिल जाएगा. 2 schools in the same city means वो same city में है. Which type of network will be used to implement? The same. Within the city, which type of network will be used? MAN. That means Metropolitan Area Network. And you have to write the full form of that also. Now moving on to the next question. This is from SQL. Observe the given table, teacher, and give the output of the questions first and second. 2 आपको syntax given है SQL की, आपको एक टेबल गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द आउटपुट बेस्ड अपॉन दिस कमांड्स. अब सबसे पहले देखो, सेलेक्ट टीचर नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग. मेरे पास कितने कॉलम है टेबल में? 3, बट डिस्प्ले कितने कराने हैं? 2. कौन कौन से? टीचर नेम एंड DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. फ्रॉम टीचर, वेयर टीचर नेम लाइक परसेंटेज एंड I. व्हाट डज दिस मीन परसेंटेज एंड I? टीचर नेम, ये आपका टीचर नेम का कॉलम है. इसमें से आपने वो नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं जो एंड किस में हो रहे होंगे? I पे. और परसेंटेज मींस आगे आपके एक से ज्यादा कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. तो ऐसे कौन से हैं जो I से एंड हो रहा हो? 1 इज प्रीति एंड सेकेंड बस ओनली प्रीति. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टीचर कोड एंड इसके टीचर कोड नहीं आएगा, टीचर नेम एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग. ये 2 चीजें डिस्प्ले करानी है. अगर सपोज यहाँ पर होता वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर I एंड परसेंटेज, तो दैट मीन्स आगे फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड आपका क्या आना चाहिए? I, और उसके आगे कुछ भी हो. तो सेकंड कैरेक्टर जहां पर मेरा I है, दैट मीन्स निशा, तो उसकी डिटेल्स प्रिंट होगी. ठीक है, अगर मैं इसी को कर देती सपोज परसेंटेज I एंड अंडरस्कोर, दैट मीन्स आगे कुछ भी हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, लास्ट में एक कैरेक्टर हो, उससे पहले I हो, दैट मीन्स लास्ट सेकंड कैरेक्टर I. तो ये बलबीर, जसबीर और कुलबीर, इनकी डिटेल्स डिस्प्ले होती. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इज परसेंटेज I, तो देन दैट मीन्स प्रीति एंड 2007, 9 और 20. This will be your final output. Next part is select star from teacher. Select star, that means you have to display the complete details: teacher code, teacher name and date of joining. Where DOJ like percentage 09 percentage.
मीन्स आपने जहां पर ये %09 आ रहा है उनके डिटेल्स डिस्प्ले करानी है. सो फॉर दैट वी आर हैविंग 2 rows, T002, T003, निशा, प्रीति एंड दीज 2 डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो आपने आंसर लिखोगे इसमें. नाउ नेक्स्ट इज माय क्वेश्चन ऑफ एसक्यूएल. इसमें आपके इस बार ज्वाइन के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें आपको 2 टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे. इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट कमांड्स रहती हैं, बिटवीन वाला आता है हमेशा, ऑर्डर बाय के थ्रू आती है कमांड, वेयर कंडीशन के थ्रू आता है, ग्रुप बाय आती है. दीज कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Next question is write SQL queries for 1 to 4 and write outputs for SQL queries 5 to 8 which are based on the following table. एक ये फैकल्टी टेबल गिवन है और एक ये शेड्यूल टेबल गिवन है. ठीक है. अब टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल मेल फैकल्टीज, ये फैकल्टी टेबल है, इसमें आपने सिर्फ मेल फैकल्टी की डिस्प्ले करानी है डिटेल्स. तो आपने अपना कॉलम का नेम चेक करना है. कॉलम नेम इज जेंडर. दैट मीन्स मुझे किस पर कंडीशन लगानी है, जेंडर कॉलम पर. सेलेक्ट डिस्प्ले डिटेल्स, दैट मीन्स सारी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है. तो उसके लिए क्या आ जाएगा, स्टार फ्रॉम टेबल नेम फैकल्टी वेयर मेल फैकल्टीज की है, तो दैट मीन्स जेंडर इक्वल्स टू मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द एफ कोड, एफ नेम एंड जेंडर. अब 3 चीजें डिस्प्ले करानी है. तो व्हाट विल यू राइट, सेलेक्ट एफ कोड, F name and gender from table name faculty who are either teaching subject or teaching subject web designing. अब teaching subject वाले कॉलम का नेम क्या है, subject. तो अब आपने कंडीशन किस पे लगानी है, subject पर, where subject equals to programming or subject equals to web design. Or with the help of in operator also you can write this command, select F code, F name, gender from faculty where subject in programming and web design. Both the methods are correct. और जो ये सिंटेक्स आएगा ये आपका 1 मार्क का लिखने को आता है, हाफ मार्क्स होते हैं इतने पोर्शन का, और उसके बाद जो आप कंडीशन लगाओगे वेयर के बाद, हाफ मार्क्स उसका होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द एफ कोड, एफ नेम, ज्वाइन डेट एंड रूम. दैट मीन्स सेलेक्ट एफ कोड, एफ नेम, ज्वाइन डेट, रूम from table name faculty of all faculty members in descending order of the room numbers. अब रूम नंबर्स वाले कॉलम का नेम क्या है, रूम. तो कंडीशन किस कॉलम पर लगेगी, रूम पर, और आपने डिस्प्ले कराने अकॉर्डिंग टू देयर डिसेंडिंग ऑर्डर. तो विच क्लॉज विल बी यूज्ड, ऑर्डर बाय. तो सेलेक्ट एफ कोड, एफ नेम, ज्वाइन डेट, रूम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय रूम, DESC. DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना होता, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो यू कैन omit दिस ऑल्सो, और इवन यू कैन राइट ASC फॉर असेंडिंग ऑर्डर. अदरवाइज अगर डिसेंडिंग में गिवन है तो इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू राइट द DESC कीवर्ड, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट विल बी इन द असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट पार्ट इज टू एड अ न्यू फैकल्टी मेंबर विद द फॉलोइंग डिटेल्स. न्यू फैकल्टी मेंबर ऐड करना है. ठीक है. कौन सी टेबल यूज होगी, फैकल्टी, और विच कमांड विल बी यूज्ड टू ऐड अ न्यू मेंबर, इंसर्ट कमांड. तो व्हाट विल बी योर सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और ये वैल्यूज आपको गिवन है F1010, अनिश मोहंती, M209, इस तरीके से ये आपने सारा डेटा इंसर्ट करा देना. ठीक है. अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जहां पर आपकी इंटीजर वैल्यूज है, there तो it's your choice, you can even write it in quotes or even without quotes. But जहाँ पर आपकी जिसकी डेटा टाइप char या varchar होगी, then it will become mandatory for you to write the value in the quotes. You can use double quotes or you can use single quotes. ठीक है. Generally single quotes हम use करते हैं इसमें, but it's your choice. And read the note point here. While writing the answers of the following output questions, consider the original data as given in the above table. That means जो अब हमने रो इंसर्ट करी है, अब जब हम नीचे आउटपुट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमने वहां पर जो है न्यू वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, जो हमने ये रो ऐड करी है. ठीक है. अब आउटपुट वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे. सेलेक्ट काउंट एफ कोड 1 एंड काउंट एफ कोड 2. काउंट करना है फ्रॉम शेड्यूल टेबल वेयर एफ कोड 1 इक्वल्स टू F1009
और f कोड 2 इक्वल्स टू 1009। इसमें भी वन टाइम है और इसमें भी वन टाइम है, काउंट करेंगे तो वैल्यू विल बी 1। तो हियर यू हैव टू राइट 1। नाउ let's move on to the next question. Select C code, F code 3 और F name. These things you have to display. तो यहाँ पर लिख लेंगे हम C code, F code 3 and F name from faculty dot schedule. Faculty को मैं schedule where faculty dot F code equals to schedule dot F code and faculty dot F code equals to F1001. मीन्स हम पहले चेक करेंगे कि फैकल्टी डॉट एफ कोड 1001 कहाँ पर है। इस वाली टेबल में तो यहाँ पर है, ठीक है, और इस वाली टेबल में एफ कोड 1001 यहाँ पर है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें डिस्प्ले क्या कराना है बेटा, सी कोड, एफ कोड 3 और एफ नेम। सी कोड C2, एफ कोड 3 1006 और एफ नेम हरिचरण झा। तो ये आपने डिस्प्ले कराना है। ये आपका इस तरीके से आपका इसका आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट जेंडर कोमा काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय जेंडर। अब किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है आपने, जेंडर के अकॉर्डिंग। अब काउंट स्टार मींस इट विल काउंट कि मेल पर्संस कितने हैं, फीमेल पर्संस कितने हैं। फॉर मेल 1 2 एंड देन 3 एंड फॉर फीमेल 1 2 एंड देन 3। तो दोनों के लिए हम क्या लिख देंगे काउंट स्टार में 3। एंड मेक श्योर बेटा नॉट कंसीडर दिस वैल्यू व्हिच वी हैव इंसर्टेड इन द फोर्थ पार्ट, इट्स क्लियरली मेंशन्ड देयर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट min. Min function will find the minimum value of that column. From which column? Room. From faculty where join date is greater than 2004 12 15। अब ज्वाइन डेट चेक करेंगे 2004 ग्रेटर देन 12 और 15 कौन कौन सी है। 2004 से ग्रेटर ये 2 है मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेंगे रूम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 203। सो योर आंसर विल बी 203। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्किंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या आपको गिवन है, आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। इन द फर्स्ट पार्ट एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, दैट मींस दिस इज माय सर्वर और इसी से मेरी सारी की सारी नोड्स क्या हैं, कनेक्ट है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ केबल इज नीडेड व्हिच इंक्रीज द इंस्टॉलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सो यू हैव टू राइट द स्टार टोपोलॉजी। एंड सेकंड इज it has a single common data path connecting all the nodes, ठीक है। तो that means this is our bus topology। तो ये आपका किसका एग्जांपल है बेटा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट टू इवन जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं एग्जाम में कि कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी फिर स्टार टोपोलॉजी, इस तरीके से। Write 2 advantages of 4G over 3G mobile telecommunication technologies in the terms of speed and services. Now see बेटा, अगर हम कंपेयर करें 4G को with 3G, ऑब्वियसली मेरे पास बेटर सर्विस होगी 4G में, बेटर स्पीड होगी 4G में। अब आपने वही लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड सर्विस कि कौन सी स्पीड, किस चीज की स्पीड फास्ट होगी और कौन सी सर्विसेज मुझे ज्यादा मिलेंगी। सो इन टर्म्स ऑफ स्पीड अगर हम 4G टेक्नोलॉजी की बात करें, फास्टर वेब ब्राउजिंग होगा, फाइल ट्रांसफर रेट फास्ट होगा। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो बेटर वीडियो क्वालिटी, बेटर सिक्योरिटी, दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। नेक्स्ट आपका एब्रीविएशन का क्वेश्चन भी एग्जाम में, ये तो 100% आता ही है। देयर आर सो मेनी एब्रीविएशंस, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो आल्सो ऑन द एब्रीविएशंस, यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसमें जितने भी एब्रीविएशंस हैं, आई हैव कवर्ड ओनली दैट एब्रीविएशंस, उसमें से आपकी डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। दैट पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। WLL means wireless in local loop and GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड होता है, मींस GPS। द फुल फॉर्म ऑफ GPS इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरल पैकेट सर्विस। नो,
GPRS is a separate term, GPS is a separate term. For GPRS, it's General Packet Radio Service, and for GPS, it's Global Positioning System. Now next question is based upon your case study. Again, it's important question. इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये सारा आपका इसका स्ट्रक्चर गिवन है, कहाँ पर कौन सी कंपनी है, इसका सेटअप बता रखा है, ACT, BCT, प्लस इनका डिस्टेंस बता रखा है एक विलेज से दूसरे विलेज तक, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. प्लस आपको इसमें 2 टेबल्स गिवन होंगी, एक डिस्टेंस की और एक मेरे पास हर एक बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट होता है, सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इन बी हब out of the 4 locations to get the best and effective connectivity. Now see बेटा, सर्वर कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर मेरे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या होंगे, मैक्सिमम. सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम इन बी टाउन, सो सर्वर विल बी प्लेस्ड इन बी टाउन as it is having the maximum number of computers. Now next question is, suggest the best wired medium एंड ड्रॉ द केबल लेआउट. अब इस क्वेश्चन में आपसे 2 थिंग्स पूछिए. एक तो बेस्ट वायर्ड मीडियम कौन सा होगा, ऑप्टिकल फाइबर, एंड यू हैव टू ड्रॉ द केबल लेआउट लोकेशन टू लोकेशन टू इफेक्टिवली कनेक्ट वेरियस लोकेशंस विद इन द बी हब. दैट मीन्स जो आपका ये बी सिटी है, इसको आपने कनेक्ट करना, इसको आपने हेड ऑफिस से अब कनेक्ट नहीं करना. ठीक है. नाउ फॉर दैट वन मेथड इज यू कैन यूज द स्टार टोपोलॉजी मेथड. मींस जहां पर आपका सर्वर है उसी को आपने सभी बिल्डिंग से कनेक्ट कर देना. सर्वर कहां पर है मेरा, बी टाउन में. इस बी टाउन को हमने इस विलेज 3 से कनेक्ट करोगे, विलेज 2 से और विलेज 1 से. ठीक है. नेक्स्ट मेथड आपका क्या रहता है, 80-20 रूल, कि आपने जो मिनिमम डिस्टेंस गिवन है उसमें कनेक्ट करना है, बट मेक श्योर कि वहां पर आपका लूप यूज ना हो. ठीक है. अब सपोज सबसे कम डिस्टेंस है हमारा 1.0 किलोमीटर, विलेज 2 टू बी टाउन. विलेज 2 टू बी टाउन मैंने कनेक्ट कर दिया. उस 1.0 के बाद है 1.5 विलेज 3 टू बी टाउन. फिर है उसके बाद विलेज 1 टू बी टाउन. वही सेम बन गया इसमें, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज ही आपका सेम हो, बट आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. बट उसमें ये चीज ध्यान रखने की मेरा एक लूप नहीं बनना चाहिए. लूप इन द सेंस कि सपोज मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ये वाला था, एक ये वाला था, थर्ड ये वाला है, तो ये वाला आप नहीं लोगे, फिर नेक्स्ट वाला कंसीडर करेंगे. ठीक है. अदरवाइज जो आपका बेस्ट मेथड रहता है कि आपका जहां पर सर्वर प्लेस है उसको हम कनेक्ट कर देंगे रिमेनिंग बाकी बिल्डिंग से. नेक्स्ट पार्ट, विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट to connect all the computers within the location of B hub. कि अगर मेरे को मीन्स B hub में एक ऐसा कौन सा डिवाइस यूज करूं जो हर एक कंप्यूटर या उसके साथ वो कनेक्ट करेगा. तो इसमें आपने हमेशा क्या लिखना है, आइदर स्विच और हब. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विस और प्रोटोकॉल, मीन्स यू हैव टू राइट आइदर द सर्विस और द प्रोटोकॉल that will be the most helpful to conduct live interaction of experts from head office and people at all locations of B hub. सर्विस तो कौन सी होएगी बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि हमने क्या करना है, लाइव इंटरेक्शन करना है. ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास क्या होएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एंड प्लस आपने और क्या लिखना है, प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल हमारे पास एक है VoIP फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड द फुल फॉर्म ऑफ VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इनमें से आप एक भी लिख सकते हो क्योंकि स्लैश गिवन है. अगर आपको श्योर है दोनों करेक्ट है तो यू कैन राइट बोथ आल्सो. नेक्स्ट पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फाइल हैंडलिंग, इसको प्रैक्टिकली करेंगे. राइट अ मेथड इन पाइथन रिप्लेस विथ to read the data from a text file story.txt and replace the word you will with you will in the same file. आपने क्या करना है, replace with name से function define करना है. story.txt फाइल गिवन है, from that file you have to read the data, और जहां जहां पर you will है उसको आपने replace करना है you will से.
और सेम फाइल में करना है, ठीक है। और ये आपको story.txt जो मेरी फाइल है उसका ये टेक्स्ट गिवन है। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। लेट मी क्रिएट द story.txt फाइल। इट्स ऑलरेडी देयर, लेट मी कॉपी पेस्ट द टेक्स्ट। ये वाला टेक्स्ट है बेटा, ठीक है। अब इसमें जहां जहां पर यहाँ पर यू विल लिखा हुआ है, दिस यू हैव टू रिप्लेस विद द यू विल, ठीक है। ये काम करना और इसी फाइल में आपने करना है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। अब फंक्शन का नेम आपको गिवन है, डेफ replace with. This is the name of my function, and the very first step we have to open the file, and the name of my file is story.txt. किस मोड में ओपन करेंगे? We have to read the data plus we have to write the data in the same file. So R plus मोड उसमें यूज होगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, फाइल में से डेटा को रीड करेंगे। For that read function will be used. अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको वर्ड से रिलेटेड गिवन होगा उसमें आपका मोस्टली स्प्लिट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन व्हाट इट विल डू, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न मी द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। फिर उस लिस्ट पर हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं वर्ड नेम से एक ले लेते हैं, इक्वल्स टू डेटा जो मेरे पास स्ट्रिंग आई थी, इसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगी फॉर आई इन वर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इफ, अब वो एक एक वर्ड को रीड करेगा, यू और फिर इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट आ रहा है तो आप स्ट्रिंग को डबल कोट से स्टार्ट करोगे या फिर ट्रिपल कोट से। अब जहां जहां पर यू विल है, यू हैव टू रिप्लेस दैट विथ यू विल, यही चीज करनी है, ठीक है। अब फाइल में राइट कराने से पहले एक बार काम करते हैं, इसको या तो स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करा सकते हो या डायरेक्ट फाइल में, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं रीड फंक्शन आर प्लस मोड में ओपन करूंगी, आफ्टर रीडिंग द डेटा माय फाइल पॉइंटर विल बी एट द एंड ऑफ माय फाइल। लेट मी शो यू माय टेक्स्ट फाइल। दिस इज माय टेक्स्ट फाइल, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द डेटा माय पॉइंटर विल पॉइंट हियर, और अगर अब मैं राइट करूंगी तो वो तो इसके आगे कंटिन्यू करेगा, बट मुझे इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे स्टार्टिंग से ही इसी की जगह रिप्लेस करना है। सो वी हैव टू मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ माय फाइल, एंड टू मूव द फाइल पॉइंटर व्हिच फंक्शन विल बी यूज्ड, seek फंक्शन। सो वी विल राइट f.seek एंड टू मूव एट द बिगिनिंग seek 0, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फाइल में राइट कराने के लिए f.write, अब मैंने क्या लिख दिया, i, ठीक है। वो रिप्लेस करके लिख देगा। एल्स अगर वो यू विल वर्ड नहीं है तो बाकी वर्ड्स तो मुझे राइट कराने ही है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, f.write i। अब इसमें देखो क्या मिस्टेक आएगी, अगर आपने अभी से फाइंड आउट कर लिया तो इट्स वेरी गुड। अब मैं क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। लेट मी सेव द फाइल, उसी सेम लोकेशन पर कर देते हैं जहां पर मेरी टेक्स्ट फाइल है। Let me name just it where you will replace, ठीक है। एग्जीक्यूट करा, कोई एरर नहीं शो हुआ, इसको एक बार दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं, फाइल वाज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं story.txt को। अब देखो उसने रिप्लेस तो कर दिया, ठीक है, बट उसने क्या किया, स्पेसेस नहीं आए बीच में, ठीक है। और ये स्पेसेस क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरा जो ये वर्ड है ये क्या है, लिस्ट की फॉर्म में है, मैंने तो बस वही वर्ड्स रीड करके डिस्प्ले करा दिया। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर ये स्पेसेस भी यहाँ पर साथ में ऐड करने हैं अपनी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब एक बार वो टेक्स्ट फाइल का डेटा चेंज कर देते हैं क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको ओरिजिनल वाला डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको सेव कर दिया। अब एग्जीक्यूट करेंगे इसको। अब हम अपनी story.txt फाइल को चेक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि जहां जहां पर मेरा यू विल था वो अब किससे रिप्लेस हो गया है, यू विल से, ठीक है।
हमने जस्ट क्या किया बेटा, फाइल में से डेटा को रीड करोगे, स्प्लिट करोगे और ये फाइल पॉइंटर को जरूर मूव करना है बिगिनिंग पर, बिकॉज आफ्टर रीडिंग द डेटा वो पॉइंटर कहाँ पर आ जाएगा, एंड पर। फिर रिप्लेस करेंगे, फिर हम फाइल में डेटा को राइट कर देंगे। और ये and this blank space within the quotes is used to concatenate the words with the, means हर एक वर्ड के बाद आपका क्या आ जाए, स्पेस। वो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब मेरे पास एक एक वर्ड तो आ रहा है बट मेरे पास उसमें स्पेस ऐड नहीं हो रहा, सो टू राइट दैट वी हैव टू यूज द दिस स्पेस विद इन द quotes also. Now let's move on to the next question. Write a function in Python count word, means count name से function बनाना है, plus you have to pass the argument with name word to count the frequency of a word from a text file story.txt. Frequency of a word means how many times the word occurs in a file, that you have to take the input from the user. The word whose frequency is to be counted must be entered by the user at runtime and passed as an argument to a function. For example, the same sample file is given. Enter the word to check the frequency. User has entered 2 and the frequency of 2 is 9. That means in this sample text file 2 occurs 9 times. The word 2 occurs 9 times. Let's make this program now. इसी में कर देते हैं. Let's do the changes in this. अब देखो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड। आपने क्या काउंट करने हैं, वर्ड्स, तो दैट मीन्स आपका स्प्लिट फंक्शन यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर द वर्ड हुज फ्रीक्वेंसी इज टू बी चेक्ड, अब जो भी यूजर वर्ड एंटर करेगा वो आपका किस में आ गया बेटा, W में। यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं फंक्शन का, इट्स काउंट, एंड हियर वी विल कॉल द फंक्शन काउंट एंड पास W एज द आर्ग्यूमेंट, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं उसको रिसीव करने के लिए वर्ड, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर I इन वर्ड, इफ I डबल इक्वल्स टू वर्ड, और जब भी कुछ काउंट करना हो यू हैव टू टेक अ वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0 एंड इंक्रीमेंट इट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास वर्ड की लिस्ट आ गई। अब उस पर मैंने फॉर लूप लगाया उस लिस्ट पर कि एक एक वर्ड को किससे कंपेयर कर रही हूँ, इस वर्ड से, मीन्स जो यूजर, इसको चेंज कर लेते हैं, दोनों W हो गए। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया वर्ड्स, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्ड्स मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है कंप्लीट जिसमें मेरे पास सारे वर्ड्स हैं, उस लिस्ट पर मैंने फॉर लूप लगाया, फिर एक एक वर्ड को मैंने पिक किया, इफ I डबल इक्वल्स टू वर्ड, ये वो वर्ड है जो यूजर एंटर करेगा जिसकी मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ठीक है। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स कंडीशन ट्रू, तो वी हैव टू इंक्रीमेंट दैट वेरिएबल, एल्स पार्ट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉल्स है तो ठीक है, कुछ नहीं हमने काउंट करना। At the end of this for loop, outside the for loop, we will display the frequency. ठीक है, suppose I am writing frequency of word भी डिस्प्ले करा देते हैं, किसकी करनी थी, is, और किस वेरिएबल में है बेटा, count, ठीक है। Let's execute this function, इसको हटा देते हैं यहाँ से। Let's execute this now. Enter the word whose frequency is to be checked, let's suppose 2, और 2 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से हम अपना किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को हम चेक कर सकते हैं। Now next move on to the next question is from the binary file. Consider the following definition of stock. ये आपको लिस्ट गिवन है, स्टॉक नेम से स्टॉक ID, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। राइट अ मेथड और फंक्शन, कॉस्टली नेम से आपने फंक्शन डिफाइन करना है, टू सर्च एंड डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस फ्रॉम अ पिकल्ड फाइल stock.dat वेयर प्राइस ऑफ आइटम्स आर मोर देन 1000, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो मुझे रीड फंक्शन, राइट फंक्शन भी लगाना पड़ेगा,
प्लस मैं रीड भी करूंगी कि मेरा डेटा करेक्टली राइट हुआ है कि नहीं. बट इन योर एग्जाम देयर इज नो नीड टू राइट द रीड एंड राइट फंक्शन इफ इट इज नॉट मेंशन. आपको सिर्फ क्या मेंशन है कि आपने कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, कोस्टली फंक्शन. बट हियर वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस, so I will write the read and write function also. Let's quickly write that. First we will write the data in the file. File को open करेंगे. File name is stock.dat in write binary mode. We are writing the data in a file. While true means जब तक वो condition true रहेगी, user ने क्या क्या enter करना है बेटा, stock ID, name, price और quantity. Stock ID, name, price and then quantity. Stock ID let's suppose इसको string ले लेते हैं, input stock ID, then name, this will also be in a string, then price let's take it in the input int, and you can even use float also, and quantity. ये चीजें यूजर एंटर करेगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक स्टॉक नेम से लिस्ट बना लेंगे. उस स्टॉक में मैं क्या क्या लिख दूंगी, SID, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी. हियर यू हैव टू राइट द नेम्स, SID, नेम, प्राइस जो आपने यहाँ लिखे हैं वही आप यहाँ यूज करोगे, क्योंकि उन्हीं की वैल्यूज मुझे लिस्ट में एंटर करानी है. ठीक है, अब लिस्ट आ गई. अब मुझे क्या करना है, फाइल में डेटा राइट करना है. फॉर दैट वी आर हैविंग द dump फंक्शन, एंड फॉर दैट वी हैव टू इंपोर्ट द pickle मॉड्यूल आल्सो. सो व्हाट आई हैव टू राइट इट हियर, pickle.dump लिस्ट प्लस किस फाइल में, उस फाइल का हैंडल. ठीक है, एक एक करके हमने डेटा लिस्ट की फॉर्म में एंटर कर दिया. अब मैंने यहाँ नेस्टेड लिस्ट नहीं लिखा है. ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर से चॉइस लेंगे कि मुझे और रिकॉर्ड्स भी एंटर करने हैं या नहीं. मोर रिकॉर्ड्स, हियर आई एम राइटिंग यस और नो. इफ ch in this. ठीक है, अगर मीन्स उसने नो प्रेस कर दिया तो ब्रेक, दैट मीन्स लूप से बाहर, और फिर हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज. ठीक है, अब हम एक साथ में रीड फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं, which will read the data from the file. Same file, this we will open in the read binary mode now. ये इसलिए राइट कर रीड फंक्शन लिख रहे हैं so that I can check कि जो फाइल में डेटा राइट करा है वो करेक्टली रीड हो रहा है या नहीं हो रहा. For that try and except block will be used. While true, यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी लिस्ट ले ली, सॉरी, pickle.load. अब हम इसको प्रिंट करा देंगे स्टॉक को. ये ट्राई और एक्सेप्ट क्यों यूज करते हैं, इस पर भी एक एक्स्ट्रा स्पेशल वीडियो बना रखी है बेटा, दैट ऑल्सो यू कैन वॉच टू क्लियर योर कंसेप्ट्स. और जैसे ही एंड ऑफ फाइल हो जाएगी मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी बेटा, यहाँ से क्लोज. ठीक है, अब पहले मैं राइट फंक्शन को कॉल करेंगे, देन वी हैव टू कॉल द रीड फंक्शन. Now let's execute this. Here we have to write the name of the file handle from which we are reading the data from a file. Execute it now, and the shortcut key to execute it is F5. Stock ID 101, name let's suppose mouse, price 560, quantity 15. More records, yes, total 5 records we will enter. 102, let's suppose keyboard, and then price 750, quantity 200. More record, yes. Stock ID 103, name laptop, price 25,000, quantity 70. More record, yes. 104. CPU, price 1500, quantity 50. More record, yes. 105. UPS, price 750 and this quantity. ठीक है, अब इसमें देखो इसने सारा का सारा डेटा हमारा रीड कर लिया. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आएंगे. यू हैव टू राइट अ फंक्शन, फंक्शन नेम इज कोस्टली, टू सर्च एंड डिस्प्ले. क्या क्या डिस्प्ले कराना, सिर्फ नेम और प्राइस.
और कौन सा जिसमें आइटम्स में क्या हो, प्राइस क्या हो मोर देन 1000। अब यहां पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं कॉस्टली नेम से। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर। अब एक एक हमने रीड करा, अब किसको कंपेयर करना है, प्राइस को। अब जब मेरा ये स्टॉक लिस्ट है, इसमें प्राइस किस इंडेक्स पर है बेटा, 0, 1, 2। तो दैट मीन्स मैं कंडीशन किसकी चेक करूंगी, इफ स्टॉक ऑफ 2 ग्रेटर देन 1000। ठीक है। अब मुझे कंप्लीट, अगर लिखा होता कंप्लीट रिकॉर्ड प्रिंट कराना मीन्स ऑल द डिटेल्स, तो हम यहाँ सिंपल स्टॉक लिख देते, बट सिर्फ क्या डिस्प्ले कराना है हमें, नेम एंड प्राइस। और अब हम क्या चेक करेंगे, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ नेम एंड प्राइस, 1 and 2. So here we will write 1 and 2. ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड बिफोर दैट लेट मी कॉल द कॉस्टली फंक्शन ऑल्सो, and there is no need to call the right function again as data is already written in that. Let me just execute this. Now see here, अब मेरे पास क्या डिस्प्ले हुआ, लैपटॉप एंड सीपीयू, और सिर्फ यही रिकॉर्ड्स है मेरे पास जिनमें मेरा क्या है बेटा, प्राइस ग्रेटर देन 1000। वन इज लैपटॉप एंड सेकंड वन इज सीपीयू। बाकी सब में प्राइस मेरा क्या है, 1000 से लेस है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी के जैसा ही है, बस इसमें आपका क्या है, employee.dat फाइल है, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। अब आपने क्या डिस्प्ले करानी है, डिटेल्स। दैट मीन्स कंप्लीट यहाँ पर डिक्शनरी लिस्ट का नेम प्रिंट करा देंगे, दैट मीन्स स्टॉक। ठीक है। और क्या चेंज है क्वेश्चन में, ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर अर्निंग बिटवीन 20,000 एंड 40,000। दैट मीन्स यू हैव टू चेक द इंडेक्स ऑफ द सैलरी। अब सैलरी का इंडेक्स क्या है बेटा, 2। तो व्हाट वी विल राइट हियर, स्टॉक 2 greater than equals to 20,000 and stock 2, आप यहाँ पर एम्प्लॉय जो आपकी लिस्ट का नेम है वो लिखोगे, लेस देन इक्वल्स टू 40,000 एंड बिटवीन में आपकी बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये आपकी दोनों क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। ठीक है। सेम इसको आप एग्जीक्यूट करके देखोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या इफ यू वांट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस बाय मी, so you can write it in the comment section. I will execute that also. Otherwise we are having separate videos also in this that you can watch from the playlist of file handling. Now let's move on to the next question. What possible outputs are expected to be displayed on the screen at the time of execution of program from the following code? Also specify the minimum values that can be assigned to each of the variable begin and last. अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम इंडेक्सिंग देंगे। इंडेक्सिंग, दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। अब देखो random डॉट rand int, दैट मीन्स इट विल जनरेट रैंडम वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3, और जो आपका लास्ट है ये begin to 4, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो मैं फोर लूप में अगर हम बात करें, स्टार्ट तो कहां से होगा, बिगिन की वैल्यू से, दैट मीन्स 1, 2, 3, 1, 2 और 3 यहां से स्टार्ट हो सकता है, और एंड कहां से होगा, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 20, 30, 40, 50। अब ऑप्शंस देखो, 30, 40, 50 मीन्स 30 से स्टार्ट होकर 50 पर एंड हो सकता है, करेक्ट। क्या 10 से स्टार्ट हो सकता है, नो, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 30 से स्टार्ट होकर क्या 60 पर एंड हो सकता है, नो, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 30 से स्टार्ट होकर 70 पर एंड हो सकता है, नो, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो माई करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज 30, 40 एंड 50, और बीच में आपके डैश आगे यस इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और आपने साथ में क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन्ड टू द वेरिएबल बिगिन एंड लास्ट। तो मिनिमम वैल्यूज फॉर बिगिन एंड लास्ट दोनों के लिए ही मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, 1। आपने अलग से स्पेसिफाई करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बिगिन इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लास्ट इज 1। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो फॉर बिगिन इट्स 3 एंड फॉर लास्ट इट्स 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, डू, पुश
and do pop. This is from data structure stack in queue. And in your board exam, you will get the choice to attempt the question either from stack or from queue. So write a function do push customer do pop to in Python to add a new customer and delete a customer from a list of customer names. ठीक है. अब for that अगर हम stack की बात करें तो def function definition will start do push. This is the list customer. और क्वेश्चन में ही गिवन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स. दैट मीन्स एंटर कस्टमर नेम इनपुट कराएंगे यूजर से और ये मुझे अपने स्टैक में क्या करना है, पुश करना है. ठीक है. और स्टैक में कहां पर पुश होगा, एंड साइड एंड से. दैट मीन्स फ्रॉम द टॉप एंड, जो उसमें एक ही एंड होता है. तो उस अब क्या आएगा यहाँ पर, अपेंड फंक्शन. लिस्ट का नेम कस्टमर डॉट अपेंड. और क्या अपेंड करना है, ए, जो हमने यूजर से नेम एंटर कराया. एंड फॉर पॉप ऑपरेशन, if my list is empty तो then it will show stack is empty. otherwise एलिमेंट को डिलीट करेंगे. एंड पॉप फंक्शन में हमने यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं दिया है तो आपका ये कहां से एंड करेगा. स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. दैट मीन्स लास्ट वाला. तो अगर मुझे पॉप फंक्शन में मैं यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं दूंगी तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड. एंड इन केस ऑफ क्यू दिस इंसर्शन ऑपरेशन विल बी सेम. In case of deletion, you have to write member dot pop 0. That means हमने कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर आप यहाँ पर pop 0 नहीं लिख रहे हो तो सिंपल क्या कर दोगे, member 0. मीन्स उस लिस्ट में जो मेंबर इंडेक्स पर, जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है, that will get deleted. Now next question, this is output based question from the function chapter. इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब सबसे पहले देखो ए में वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 3 और बी में वैल्यू क्या गिवन है, 5. ठीक है. अब ए इक्वल्स टू कॉल मी. दैट मीन्स हमने कॉल मी फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए ए कॉमा बी. दैट मीन्स ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5. तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, अब n1 में क्या आ जाएगा बेटा, 3 और n2 में मेरे पास आ जाएगा 5. ठीक है. फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट. अब मैं क्या करूंगी, n1 इक्वल्स टू n1 इंटू 2, n1 इंटू n2. दैट मीन्स n1 3 इंटू n2 क्या है, 5. तो 3 इंटू 5 15. तो दैट मीन्स n1 में वैल्यू क्या आ गई बेटा, 15. अब n2 इक्वल्स टू n2 प्लस 2, n2 प्लस 2. ठीक है. अब मैंने क्या करना है, n2 प्लस 2. दैट मीन्स n2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 5, जो मैंने यहाँ पर पास की थी, दिस वैल्यू. ठीक है. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस 2. दैट मीन्स 7. इतना समझ में आया. अब प्रिंट क्या कराना है, n1 कोमा n2. दैट मीन्स n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू. n1 की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 15 और n2 की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 7. ठीक है. 15 और 7. अब रिटर्न n2. दैट मीन्स n2 वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी 7. और रिटर्न होकर किस वेरिएबल में आएगी, जब हमने फंक्शन कॉल किया था. तो कॉल मी फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पर क्या था बेटा, a. दैट मीन्स जो n2 की वैल्यू रिटर्न होगी 7, वो किस में आ जाएगी, a वेरिएबल में. तो जब हम प्रिंट कराएंगे इसको a कोमा b, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 7 और b की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी बेटा, 5. इसी तरीके से हम इसको जब कॉल करेंगे, कॉल मी a. अब a की वैल्यू क्या पास करेंगे बेटा, 7 इंस्टेड ऑफ 3. a की वैल्यू चेंज हो गई. अब क्या पास करेंगे, 7. n1 7 लेंगे हम और n2 यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स 2. फिर इसको सॉल्व करेंगे. फिर जो n2 की वैल्यू आएगी रिटर्न होकर के वो इस टाइम किस में आ जाएगी, b में. फिर हम यहाँ से b की वैल्यू को भी चेंज कर देंगे. ठीक है. If you want the video on this, you can write it in the comment section. Otherwise मैंने इन क्वेश्चन से रिलेटेड मेरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस. उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस के काफी सॉल्यूशंस हैं. You can watch that video there also.
And last question of this video, rewrite the following code in Python after removing all the syntax errors, underline the correction done in the code. अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इसमें 4 एरर्स होते हैं, हाफ मार्क फॉर ईच एरर, ठीक है। अब इसको हमें करेक्ट करके लिखना है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। अब इसमें देखो यहाँ पर मेरे को 4 कोड्स मेंशन है, ठीक है। 4 कोड्स तो नहीं हो सकते, स्ट्रिंग कैन आइदर स्टार्ट विद सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। तो फर्स्ट एरर तो सपोज मैं यहाँ पर डबल कोट्स कर रही हूँ, ठीक है। ट्रिपल कोट्स गिवन थे, यहाँ पर 2 टाइम्स डबल कोट्स गिवन थे, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कोट्स। सेम विद हियर आल्सो, फर्स्ट करेक्शन ये है। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में जब स्ट्रिंग लिखोगे कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखोगे, आपने इसको स्मॉल नहीं करना, अदरवाइज योर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। फॉर टी इन रेंज 0 to 7, 0 to 7 में मेरे पास रेंज फंक्शन में मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, एंड हियर आल्सो, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑफ टी। अब टी मेरा क्या है, इंडेक्स 0 1 2 वैल्यूज है, टेक्स्ट मेरी स्ट्रिंग है, तो उसके लिए मेरे पास ये वाले ब्रैकेट्स यूज होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज ऑल्सो द एरर, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट इज टी प्लस टेक्स्ट। अब ये जो प्लस ऑपरेटर है, टी में मेरे पास कौन सी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यू 0 1 2 3, और टेक्स्ट में मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग वाली वैल्यूज, मेरी स्ट्रिंग है। तो क्या इंटीजर और स्ट्रिंग वी कैन ऐड द स्ट्रिंग विद एन इंटीजर वैल्यू? नो। सो यू कैन राइट इट कोमा हियर आल्सो, ठीक है, कि एक टी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, बट वो प्लस को आपने करेक्ट करना है। एंड यू कैन मेंशन द रीजन आल्सो कि वी कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग विद एन इंटीजर वैल्यू। I hope you like this video and your concepts are clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, share your views in the comment section and do press the like button. आप लोग videos देख लेते हो, like करना भूल जाते हो. If you like my videos, please press the like button. It really motivates me to do more. And if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.